A very good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of Sacred Hearts of the subject Economics. Dear students, in the previous lecture, we have started our 10th chapter out of the book Macroeconomics, and the chapter was Government Budget and the Economy. Dear students, in the previous lecture, we have discussed about the concept of government budget, who used to present it, when it is presented, and the meaning of government budget. Apart from this, in the previous lecture, dear students, we have discussed about the objectives of government budget as well. There were multiple objectives such as GDP growth, allocation of resources, provision of public goods, redistribution of income and wealth, balanced regional growth, employment opportunities, and economic stability. This all have been discussed in the previous lecture. Dear students, today in 29th lecture, we are going to discuss about the further part of the chapter in which we will start the topic structure or component of the government budget. In this, you will find out that there are two main important components, budget receipts and budget expenditures. In this, we are going to discuss about the budget receipts, out of that the revenue receipts and the tax and non-tax receipts. So let's get started about today's content. Dear students, the structure of government budget means the component of government budget or the parts of the government budgets, and there are two parts of the government budget or the components of government budget: the budget receipts and the budget expenditures. Initially, we will understand the budget receipts. Dear students, budget receipts refers to the estimated money receipts of the government from all sources during the financial year. बजट रिसीट्स क्या हैं? एस्टिमेटेड अमाउंट है टोटल जो कि गवर्नमेंट क्या करने वाली है, फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज रिसीव करने वाली है, उसको बजट रिसीट्स बोलते हैं. सी फर्दर, अब जो आपका बजट रिसीट्स है बेटा, उसको टू पार्ट्स में क्लासीफाई किया है: रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स. Initially, we will understand the meaning of revenue receipts. What are the revenue receipts? So, dear students, revenue receipts are the receipts which do not create any liability for the government, as well as it do not lead to any reduction in the assets of the government. In the simple words, we can say वो सारी receipts जिससे government की liability increase नहीं होती, एसेट्स डिक्रीज नहीं होती, उन सब रिसिप्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसीट्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टैक्स. Whatever the amount of tax government used to receive, it doesn't increase any liability of the government, nor it reduces the assets of the government. Now, dear students, in the flow chart below, you can see the constituents or the components of revenue receipts, and these are broadly classified into two parts: the tax receipts and the non-tax receipts. Dear students, today we are going to discuss the very first part of this, that is the tax receipts. See, before understanding the tax receipts, we must understand what is the meaning of tax. Although we have heard about the tax, but we didn't know the meaning of tax. हमने बहुत सुना है टैक्स के बारे में. We generally use the term tax, but हमें टैक्स का बेसिक मीनिंग नहीं पता है. तो टैक्स क्या होता है बेटा? टैक्स इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट. टैक्स क्या है? एक कंपल्सरी पेमेंट है. किसको? टू द गवर्नमेंट बाय द. अब यहाँ पे कौन कौन पे करता है टैक्स? बाय either by the household or by the firms or by any institution. That means what is tax? Tax is a compulsory payment. एक compulsory payment है जिसको कि गवर्नमेंट को पे करना होता है. और कौन पे करता है? या तो हाउस करते हैं, आप और हम पे करते हैं, फर्म्स पे करती हैं, या फिर इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स पे करती हैं. ये आपको टैक्स का इसने मीनिंग बताया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टैक्स. नाउ सी, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस. कौन कौन से टाइप हैं टैक्सेस के आपके? फर्स्ट इसने बताया प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्सेस. Thereafter, value added and specific taxes, and the last, that is the direct and indirect taxes. We are going to discuss them one by one. The very first one is the progressive and regressive taxes.
Dear students, these taxes are imposed on the basis of real burden of tax. किसके बेसिस पे? रियल बर्डन ऑफ टैक्स के बेसिस पे इस टैक्स को क्लासीफाई किया है, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव को. इनिशियली वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स. So, a tax can be stated as a progressive tax when the rate of tax increases with the increase in income. प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस कर रहा है, जो आपका टैक्स रेट है वो प्रोग्रेस कर रहा है किसके साथ? विद द प्रोग्रेस ऑफ इनकम. दैट मीन्स देयर विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव रिलेशन. As your amount of income will increase, the amount of or the rate of taxation will also increases. For example, if you are earning income in between 2 lakh to 5 lakh, तो आप पे 10% टैक्स पड़ता है. अगर 5 लाख से 10 लाख हो जाता है तो 15%, 10 लाख एंड अबव हो जाता है तो 30% एंड सो ऑन. तो आप देख रहे होंगे जैसे जैसे आपका क्या हो रहा है बेटा, इनकम इंक्रीज हो रही है, टैक्स का जो पोर्शन है, जो रेट है, वो भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. इन दिस टैक्सेशन सिस्टम, जो आपके रिच पीपल हैं उन पे टैक्स ज़्यादा पड़ता है और जो आपके पुअर पीपल हैं उनमें टैक्सेशन का जो बर्डन है वो मिनिमाइज रहता है. ठीक है. देयर आफ्टर द सेकेंड वन, दैट इज़ अ रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम. इट इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ द प्रोग्रेसिव टैक्स. जस्ट देखिए इसमें बेटा, we can state a tax as a regressive tax when the rate of tax decreases with the increase in income. अब क्या हो रहा है? टैक्स रेट डिक्रीज हो रहा है. कब? जब आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है. दैट मीन्स कि आपका कैसा रिलेशन है यहाँ पे? इनवर्स रिलेशन है बिटवीन द टैक्स रेट एंड इनकम. इनकम बढ़ेगी, टैक्स रेट डिक्रीज हो जाएगा, और अगर इनकम डिक्रीज होगी तो टैक्स रेट इंक्रीज होगा. In this taxation system, the main real burden of tax is on the poor people. किस पे रहता है बेटा? poor people पे रहता है. It is just a way of negative motivation. ये क्या है बेटा? एक negative motivation का तरीका है जिससे कि लोग induce हों, motivate हों कि उन्हें कम earn नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा earn करना है, ताकि उनको गवर्नमेंट को minimum tax पे करना पड़े. And when all of the people or most of the people of a country will earn more and more, तो जो कंट्री की जितनी भी सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी. देखिए एग्जांपल देखिए, टैक्स रेट इज़ 15% फॉर द इनकम बिटवीन रुपीज़ 2 लाख टू 5 लाख. अगर आपकी इनकम 2 से 5 लाख के बीच में तो टैक्स रेट 15% है. अगर वहीं पे आपकी इनकम कितनी हो जाती है? 5 लाख से 10 लाख इंक्रीज़ हो गई तो आपका टैक्स रेट डिक्रीज़ हो गया. कितना हो गया बेटा? 5% हो गया. ये आपका रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है. नेक्स्ट देखिए, वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको कि हम लोग वैट भी बोलते हैं, और स्पेसिफिक टैक्स. सबसे वैल्यू एडेड टैक्स की बात करेंगे. दिस इज़ एन इनडायरेक्ट टाइप ऑफ टैक्स विच इज़ इम्पोज्ड ऑन द वैल्यू एडिशन एट द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन. जब भी हम किसी चीज़ के प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो ग्रेजुअली प्रोसेस से क्या होता है? प्रोड्यूस होता है, और हर प्रोसेस में उसमें कुछ ना कुछ क्या होती है? वैल्यू एडिशन होता है, वैल्यू का एडिंग होती है. तो जब इस वैल्यू एडिशन पे टैक्स को इम्पोज करते हैं तो उसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स. सी ओवर हेयर, जीएसटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स. जीएसटी क्या है? एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स है. आगे देखेंगे, द नेक्स्ट वन इज़ द स्पेसिफिक टैक्स. This is the tax which is levied or imposed on the commodity on the basis of its unit, size, weight, क्वांटिटी. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक टैक्स बोलते हैं. जो आपकी कंप्लीट क्वांटिटी पे, उसके वेट पे, उसके नंबर पे इम्पोज होता है, दैट इज़ द स्पेसिफिक टैक्स. नेक्स्ट देयर कम्स द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द फाइनल बर्डन. डायरेक्ट टैक्स कैसे पता लगता है? मतलब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में डिफ्रेंशिएट या जो बेसिस है, दैट इज़ द फाइनल बर्डन ऑफ द टैक्स. पहले देखेंगे बेटा डायरेक्ट टैक्स. इट इज़ अ टैक्स इन विच द फाइनल बर्डन इज़ borne by the person on whom it is imposed. डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसमें कि जिस पर्टिकुलर पर्सन पे टैक्स इम्पोज होता है वही पर्टिकुलर पर्सन उस टैक्स को क्या करता है? पे ऑफ करता है. एंड दिस टाइप ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन. आप इस टैक्स को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इनकम टैक्स इज इम्पोज ऑन द इनकम ऑफ अ पर्सन एंड ही हिमसेल्फ बियर्स इट्स बर्डन. इनकम टैक्स किसका एग्जाम्पल है? एक डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है. जिसकी इनकम होगी उसी पे टैक्स इम्पोज होगा और उसी पर्टिकुलर पर्सन को ये टैक्स पे ऑफ करना पड़ेगा. वो पर्टिकुलर पर्सन अपने टैक्स को किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता. इसी तरीके से देखिए, कॉरपोरेशन टैक्स, गिफ्ट टैक्स
and wealth tax are some important examples of direct taxes. Now the next one is the indirect taxes. The tax which can be shifted, which can be transferred from one person to the another person is known as indirect tax. That means कि इनिशियली ये इम्पोज किसी और पे होता है एंड एट लास्ट इसका जो पेमेंट है वो कोई और करता है. दिस इज नोन एज द इनडायरेक्ट टैक्स. सी फर्दर, जीएसटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल. अब जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स का इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है. इसमें देखिए, इट इज़ इम्पोज ऑन द प्रोड्यूसर्स. क्या होता है? इनिशियली जो गवर्नमेंट है, जो टैक्स है वो किस पे इम्पोज करती है? जीएसटी टैक्स प्रोड्यूसर्स पे इम्पोज करती है. एंड व्हाट प्रोड्यूसर्स यूज टू डू, दे यूज टू चार्ज दिस टैक्स फ्रॉम द बायर्स. अब जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बायर्स से ये टैक्स क्या करते हैं? चार्ज करते हैं. कैसे? बाय एडिंग इट टू द प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड. जो आपको गुड्स की जो प्राइस होती है उसी में टैक्स को क्या कर देते हैं वो लोग? ऐड कर देते हैं. कौन? प्रोड्यूसर्स. तो यहाँ पे देख रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स हुआ. इनिशियली पे प्रोड्यूसर ने के पे किया, लेकिन एट लास्ट उसका पेमेंट किसने किया? उसने ट्रांसफ़र कर दिया अपना टैक्स होलसेलर को, होलसेलर ने रिटेलर को, और रिटेलर ने अल्टीमेटली वो टैक्स क्या करा? पास ऑन कर दिया कंज्यूमर्स को. तो ये है आपका इनडायरेक्ट टैक्स. नाउ द लास्ट टॉपिक, दैट इज़ द difference between direct and indirect taxes. See the very first point, it is the tax, direct tax के बारे में बता रहा है. It is the tax which is finally paid by the person on whom it is legally imposed. ये उसी पर्टिकुलर पर्सन पे करता है जिस पे लीगली इम्पोज होता है. लेकिन अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, देन इट इज़ द टैक्स विच इज़ इम्पोज ऑन वन. किसी एक पर्टिकुलर पर्सन पे इम्पोज होता है, बट कोई और अदर पर्सन इसको क्या करता है? पेमेंट करता है. सेकेंड देखिए, द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कैन नॉट बी शिफ्टेड टू वन पर्सन टू अनदर. डायरेक्ट टैक्स को आप शिफ्ट नहीं कर सकते, जबकि आप इनडायरेक्ट टैक्स को विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी ऑब्स्टिकल, विदाउट एनी प्रॉब्लम क्या कर सकते हैं? शिफ्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इसने बताया आपको थर्ड पॉइंट देखिए, डायरेक्ट टैक्सेस आर जनरली प्रोग्रेसिव इन नेचर. जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रोग्रेसिव होते हैं नेचर में. दैट मीन्स कि चीज़ों के बढ़ने पे उनका टैक्सेशन का रेट बढ़ जाता है. जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, प्रॉफिट टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया. और अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो ये जनरली कैसे होते हैं? रिग्रेसिव इन नेचर होते हैं. दैट मीन्स कि इनका जो रेट है वो इनकम बढ़ने के साथ डिक्रीज़ होता है. जैसे कि क्या हो गया? आपका जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, एंड सो ऑन. So this is all about today, dear students. Today we have discussed about the structure of the budget, in which budget receipts and expenditures were there. And in the budget receipts, we have discussed about the meaning of revenue receipts and the tax receipts of the part of revenue receipts. This is all about today. God bless you all. Lots of love.